Radha Sammukha Samsakim Sati Sangha Nivasitam Satatam Vande Guru Rupam Paramasya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhudevaccha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Yatha Yatha Gaura Padada Vinde Vindete Bhakti Krita Punya Rasika Tata Apaniridi Akasma Grada Sambam Sabam Guru Kanaka Jaladagatro Nila Sunata Netro Nirmala Malati Bao Malati Kumbama Tarala Taruna Besho Nilas Kanaka Jaladagatro Nirmala Malati Bao Malati Kumbama Tarala Besho Nila Pitambaresho Smalana Pritana Kunja Radhika Krishna Chandra Vajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Marudasmitasyam Vadami Radham Karunavaram Tato Manuyastakam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ramo Ramo Hare. So first of all, I offer pranams to our Gurudev, Om Vishnupada Vedanti Swami, Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Gosai Maharaj, our Shiksha Guru Vedanti Swami, Sri Gaura Govinda Gosai Maharaj, Sri Bhaktivedanta Madhusudana Gosai Maharaj, all Vaishnavas and Vaishnavis, Hare Krishna. So today is a wonderful day. Today is Radhastami, the appearance day of Krishna's potency, Krishna's Parashakti, Srimati Radha. So I remember when I first came to Kesavji Gaudiya Math, good old Tirtha Maharaj was giving lecture. So he was saying, those who worship Christ, Jesus Christ, they're called the Christians. And those who follow Muhammad, they're called the Muslims. And those who worship Vishnu are called the Vaishnavas. And those who worship Krishna are called the Karshanas. And those who worship Radharani are called the Gaudiyas. I remember that really struck me. It was a big person. So, we didn't discuss the philosophy of Radharani, because Radharani, two ways to understand. One is Tattva Vichar, one is Rasagat Vichar. So, one can only understand Rasagat Vichar when one's reached the stage of Ras. Yati Pavana Vatma Yat Chamatkara Bharabu Vili Sat Ujvala Sadate Ratu. Ras means the spiritual state which crosses all mental thought, which is beyond all mental idea, beyond the intelligence, beyond the mind, beyond the senses. This is Rasagat Vichar. So we are not that level, so Tattva is good for us. Siddhanta Bodhiyatma Chitina Kori Ulas, Jahavati, Drita Radhi Krishna. One who hears and discusses tattva or philosophy, mind becomes very fixed on Krishna. So, Radhika Purna Shakti, Krishna Purna Shakti Ma, Dui Vastu Ped Nahi Shastra. All the scriptures describe that Krishna is the complete Shaktiman. Krishna is the source of all potency. He is the source of everything. Whether the spiritual potency, the Chit Shakti, whether the Maya Shakti, the material energy, or the Jiva Shakti which produces the Jivas, Krishna is the source and controller of all of them. Therefore, he is called Shaktiman.
In English we say the energetic. He is the supreme energetic, the supreme potent. And he is the source and he is the source and also the enjoyer of unlimited potencies. And Krishna have unlimited potencies. Krishna Ananta Shakti Tinatu Prada. Krishna have unlimited potencies. Who can count? In Vaikuntha you have 16 potencies. Lila Shakti, Bhu Shakti, Lila Shakti, Bhu Shakti, Nil Shakti, Aishwarya Shakti, Isha Shakti, Sandhini, Sambit, Ladi. Who can count the potencies of Krishna? So all these potencies act according to the desire of Krishna. Shakti can never act independently of Krishna's desire. Never possible. Even though Krishna is surrounded by Shakti, he is manifested by Shakti. Even though he cannot do anything without Shakti. Even Krishna sees, Krishna thinks, Krishna walks, Krishna moves. This is all by Shakti. But still, Shakti cannot work without Krishna's desire. She has no independence. Two things Purush always keeps with him. One is Purushata, the enjoyer, he never gives that up. And secondly, Icha. Shakti, potency, has no independent desire. So philosophically speaking, Krishna is the supreme potent being. And Radhika is his supreme potency. So many people cannot understand the relationship between God and his potency. Like in Christianity, they're very much attached to the idea of the Supreme Lord. But you ask them, what is the relation of this world and the Supreme Lord? And then very hard for them to answer. They say, God is everything. Is this God? Is that God? Then question comes. So some people only concentrate on worship of the potency of the Supreme Lord. But other people worship the potency of the Supreme Lord. But that is also not perfect. We call those persons the Shaktas, those who worship potency without the potent. So whether you worship the potent or the potency, both follow the theory of Adha Murga Nyaya, the theory of half a chicken. There was a foolish farmer who was thinking, the head of the chicken is eating all my food, and the back half of the chicken is giving eggs and profit. So he thought, if I could have a business where there was only profit and no loss. So thinking in that way, he cut the chicken in half, threw away the head, and kept away the back half of the chicken. Of course, this is foolish logic. You cannot have just the potent, you cannot just have the potency. And of course, there's philosophies like Buddhism who ignore both of them. What to say for that? So if you look in all religions, you will find only in a deeper sense, only the Gaudiya Vaishnavas fully recognize this relationship between the potent and the potency, Krishna and his energy. Even other sampradayas like the Sri Sampradaya, still, if you look, Guru Maharaj said they believe that this world is a manifestation of God himself. So they also accept Samvastu Parinamva, even them. Even the different Vaishnava Sampradayas like the Sri Sampradaya, then also this, so the Rudra Sampradayas. But these Sampradayas don't perfectly explain the relationship between Shakti and Shaktiman, the potency and the potent. Because these philosophies come from Ramanuja, come from Nimbarka, come from who's the other? Yudhiditya. So no matter how perfect an acharya may be, a spiritual teacher may be, still, if the Supreme Lord gives a theory, that will always be superior. Because no one can be equal or more than the Supreme Lord. Therefore Chaitanya Mahaprabhu gave the perfect harmony between the potency and the potent. What is that philosophy? Achintya Ved Abheda.
What is the relationship between Krishna and his potency? Oneness is there, simultaneous oneness and difference. How can we understand? Kaviraj Goswami gives the example of the sun and the sunlight. Without the sunlight, you cannot see the sun. Without the sun, the sunlight have no existence. So that is the Chitta Veda Veda. So what is the non-difference between Krishna and his potency? We say Radha Krishna, one Sarup, one soul. Siradhaya Pranyamahima Kidiso. Sirada Krishna Pranaya Vrikiti Ladini Shakti Asman Ekatmanama Pura Deha Vedam Kato. Sarup Damodar has given this verse. Radha and Krishna are one soul. Who is Krishna? That is Radhika. Who is Radhika? That is Krishna. They are one soul. Krishna, who he always thinks about? In his core of heart, who is there? Radhika. And Radhika, who she always thinks about? Krishna, Rupa, Vesha, Lagna, Krishna, Nama, Vesha, Lagna, Krishna, Rupa, Vesha, Keli, Lagna, Satsamadika, Maya Matma, Pada, Padma, Dasta, Dastu, Radhika. Radhika is always in Samadhi in Krishna. And in his highest sense, Krishna is always in Samadhi on Radhika. So they are one soul. Like there's no difference between sun and sunlight. But still, for taste, for lila, for affection, that one soul takes two bodies, as Radha and Krishna. So, very hard to understand this philosophy. Too much need mercy of both Radha and Krishna, then we can understand these things. So, Krishna appeared 2 weeks ago. But actually, how can Krishna even take birth without his energy? How can Krishna even be seen without his energy? This Vrindavan and all the associates, that is Krishna's energy. So in philosophy, in Tattva, Radhika appeared 2 weeks ago with Krishna. Jiyaman and Janatana. She cannot appear separately. Sitapa Atapa Rohita Sita Atapa Radha Ma, what is it? Sita Atapa Kevala Mada Pujasvagani Radha Anada Koryabhima. Kevala Mada Pujasvagani Radha Anada Koryabhima. Krishna and Radhika can never be separate. So philosophically, Radhika's appearance was 2 weeks ago with Krishna. But in Leela, she manifests separately. Guru Maharaj says, Shakti have two forms, Murta and Amurta, manifest and unmanifest. So 2 weeks ago, she manifested unmanifestedly. Does that even make sense? Her unmanifest Sarupa appeared 2 weeks ago. But her manifest Sarupa appeared today. So Radhika is not some girl or like this world. She doesn't have a material body like the women of this world. Because she is Krishna's potency. She is same as Krishna. Therefore, Ananda Chinmaya Rasa Prati Pavatabi Tabeja Eva Nija Rupata Kalabiha Galoke Eva Nivasatma Akilematma Bhuto Govindamari Purusham Tamabhada. I worship the Supreme Personality, the original personality, that is Krishna. Where he lives, Goloka Vrindavan, the spiritual world. And he always appears with his divine counterpart. That is Radharani. That is Pratibhavatas. Means every moment her mind and all activities are running towards Krishna. One name of Radhika means Radha. She manifests from the left side of Krishna's body. And what she did? Dha. That means to run after. Radha. She ran after Krishna with so much attachment, with so much anurag, with so much affection.
So she is not just Krishna's potency, she is also Krishna's most beloved. So, if anyone wants the service of Krishna, they need energy. Even for material activities, we need energy. So to serve Krishna, we also need energy. Therefore, who gives energy to hear about Krishna? That is Radha. Who gives energy to speak about Krishna? That is Radhika. Who gives energy to remember Krishna? That is Radha. Who gives energy for archan or vandan or vadasyam or sakyam or anything? That energy to serve Krishna comes from Radhika. Therefore, someone who thinks I will go directly to Krishna and serve Krishna without Radhika's mercy, that is like someone who wants the moon without the moonlight. That is quite impossible. So all the acharyas have given all sadhaks instruction. Without the service of Radhika, no one can achieve success in any rasa. Not to speak of course, Manjari Bhav. So taking this point very carefully and very deeply, we should worship Radharani with full heart, with full faith. So how she appeared, that is also very wonderful. Mostly Krishna's Shakti or Lakshmi, she is called Ayoni. Ayoni means she never comes from the womb, generally. Like we were hearing the Bhagavad Saptaha the other day, when the demons and the demigods churned the milk ocean, Lakshmi came from that. So Lakshmi is mostly called a yoni. She did not come from any womb. Also Sita Thakurani, how Sita Thakurani manifested, Janak Maharaj wanted to perform one yajna. Therefore he was recommended by the rishis to plow one field with a golden plow. So as he was making that furrow, then from that furrow emerged one girl. Her name was Sita. Sita means furrow. When you plow the ground with a plow, it makes an indentation. That is called Sita. So generally Sita, Shakti Tattva appears without any womb. Therefore Radhika, the Parashakti, also appears like that. Although sometimes she directly appears from the womb of Kirtita Devi, in this kalpa, she appeared in a wonderful way. Early morning, Vrishabhanu Maharaj, that is Radhika's eternal father. From Vrishabhanu Maharaj come Janak Maharaj, come everyone else. So, early in the morning, Vrishabhanu Maharaj, this morning on Radhastami, he went to take bath. And there is one pond called Vrishabhanu Kund. And on 1,000-petaled lotus, Radhika always is called Kamala. Kamala means goddess of fortune, Kamala also means lotus. Like Golok Vrindavan, Sahasrapata Kamala. Golok Vrindavan is 1,000-petaled lotus. Because Radharani is presiding deity of Golok. Therefore, when Vrishabhanu Maharaj came, he saw 1,000-petaled lotus. And from that lotus was so much effulgence. But that effulgence was not burning, that effulgence was very sweet. Therefore, when he looked closely, he saw on that lotus a very, very attractive, very sweet baby girl. She was kicking her arms and legs like that. Only one thing was, her eyes were closed. She was not opening her eyes for anyone. So, Vrishabhanu Dadhi Navasasi Lete Lalita Saki Guna Ramita Vishaki. They said the love, the parental affection of Vrishabhanu Maharaj is like an ocean. And like the moon rises from the ocean, Radhika rose from the ocean of parental affection of Vrishabhanu Maharaj. Like Krishna is mostly known as Yasoda Nandan, Radhika is mostly known as Vrishabhanu Nandini, Vrishabhanu Gula. Therefore Vrishabhanu Maharaj saw this because Vrishabhanu Maharaj, he is the form of Vatsalya. So he took baby Radhika in his arms, he felt, and touching her he felt such bliss, such ecstasy.
Because Radharani is Krishna's Ladini Shakti. Ladini Shakti is that potency which gives happiness to Krishna. Ladini Shakti is that potency which nourishes the devotees. So Vrishabhanu Maharaj, when he held Radhika, he automatically felt such intense ecstasy. He had already held Krishna. Krishna's birthplace, time, he was already there. But when he held Radhika, he felt a special taste. So being very happy, he took this girl child back to his wife, Kitana Devi, and gave it in her hands. So very beautiful, she had all divine qualities. Radharani has 19 marks on her hands and feet. Krishna only has 18. Radhika has one special line, Gurudev would say, that is called Subhagya, the line of good fortune. Because many times we hear out of affection, devotees of Krishna may abuse Krishna, like Madhya Yasoda twisting here, Sudam, Sridam may be abusing. But we never hear of anyone abusing Radhika. We never hear. We never hear. She has that special good fortune, Subhagya. So all the marks of Lakshmi were on her hands and feet, so much attractive. And Radhika has 26 qualities. Don't think Krishna has 64 qualities, therefore he's more qualified. It's not like that. Krishna has unlimited qualities, but 64 are men. So Radhika have unlimited qualities, but 26 are most prominent. So one prominent quality in Radhika, anyone in Gokul looks at her, they drown in an ocean of prema. Means who sees Radhika, automatically what feelings they have for Krishna, that expands like an ocean. So this Katha, other devotees will speak. Already Vrishabhanu Maharaj had one son, Sridham, but no daughter. Therefore he felt so much happy. But one problem, her eyes were closed. So as Krishna 2 weeks ago had his Nandotsav birth festival, then we hear Nanda Maharaj gave so much charity, so much charity. Sesame seeds, barley, what to speak of gold, silver, jewels, pearls, mirrors, combs. Why Radhika's glory is so confidential? This Srimad Bhagavatam is the best of all Puranas. It's considered the fruit of the Vedic tree. Yet the name of Radhika is not mentioned directly even once. Then you can understand how much confidential. Even Rasik Vaishnavas like Jayadev Goswami hesitate. Even they have some touch of Aishwarya. Therefore, before Chaitanya Mahaprabhu and Goswamis, Radha Tattva was virtually, we can say, unknown, so much hidden. Therefore, Yadi Gauranga Nahito Tabike Heto Kemayado Vichute Siladhara Mahima Premarasa Sima Jagata Janatoke. If Chaitanya Mahaprabhu had not come, who would know the glories of Radhika? Nobody knew these things before Chaitanya Mahaprabhu. Then Chaitanya Mahaprabhu empowering the hearts of Rup and Raghunath, Rup and Sanat, and then they describe all these things. Then we can hear something of Radhika's glories. Because Chaitanya Mahaprabhu is the divine form of Radha Krishna. And in Gauranga Mahaprabhu, Radha Bhava is predominant. Therefore, how we know? By the mercy of Gauranga, we can know the glories of Radhika. So when Vrishabhanu Maharaj had his festival, then whatever there was in Janmashtami was double, triple, quadrupled. Vrishabhanu Maharaj giving so much. Because Nanda Baba had only 900,000 cows, but Vrishabhanu Maharaj had more opulence, more wealth, more good fortune, more bliss. So naturally, friend will invite friends to the festival. So when Radhika's birth festival was there, then Vrishabhanu Maharaj invited his good friend Nanda Baba and of course Yasoda, and they came with Krishna Balaram. So during the festival, then everyone was absorbed in different services, different celebrations. Then baby Krishna, he crawled to where Radhika was there in the maternal room. And that relationship between Radha Krishna, that is Swatsi.
So Krishna came and touched baby Radhika. Then Radhika knows the touch of her Priyatama. They will be touched by Krishna. Radhika immediately opened her eyes. So what was the first thing she saw? That is Krishna. So Jai Jai Radha Krishna, Jugamila. And then from there Radhika manifests all the qualities. Today is Radhastami. So Radhika Ujvala Rasena Racha. Radhika is the guru of all bhakti. But she is the special guru of Ujvala Ras. Therefore we also want to attain that seva. We want also that good fortune, that seva. And she is the personification of Anya Vilasita Sunyam Jnana Karmani Anavijam Anukulena Krishna Nusilanam Bhakti Ujman. The form of that verse is Radhika. Therefore I was reading this morning, Saraswati Thakur said, how can one perform Anukul Seva to Krishna without the mercy of the Anukul Shakti? Radhika. So what can we say? We just do pranam to Radhika. She is the Guru of Braj. She is the Guru of Bhakti. She is the Guru of Ujvala Ras. And even Krishna says, Radhika Prem Guru, Ami Shishanata. Even Krishna says, Radhika's Prem is my Guru. So we cannot approach her, but out of her mercy she gives us shelter, and the shelter of her devotees, then we have some hope. In 10 minutes we can speak anything about Radharani. 12 minutes. We will have the stopwatch today on both Maharajas. No one should speak more than 7 minutes. No problem, I was asking. Already lost 2 minutes. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Vajami Radham Ravindale Prasmara Radham Viduras Vidasi Guravaradam Tato Mamadyasti Vatirnatahu Adevi Kaparadadale Vivaje Cheni Pratyabudam Vidurvadati Asya Prasadam Budasvijanasya Kritvam Darvite Nigam Vide Radhe Vrindavanadi Shri Karunamrita Vahini Kripaya Nidhipadam Jadasyam Vahini Vadiratam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaurabhatta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare. First of all, my limited Dandavad pranams to the feet of Srila Gurudev. Nitya Vaishnava Vishnupada Stutra Satya Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shiksha Gurudeva Swami Vishnupada Stutra Satya Srimad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj Srimati Krishna Priyata Purani. Also all the Vaishnavas, Vaishnavis, Pujapad Namadan Maharaj, everyone, Dandavad pranams. The most blessed day, Shri Radhashtami, the appearance day of Srimati Radhika. So, Srimati Radhika is what heard the eternal Shakti of Krishna. She is Swarupa Shakti. Krishna's Swarupa Shakti means his internal potency. But specifically, Srimati Radhika is controlling Hladini Shakti, the enjoyment potency of Krishna. So, Krishna himself is the personification of knowledge. So, he is in charge of Samvit Shakti. And Baladev Prabhu of Sandhini Shakti, the transcendental existence. But since, even though Krishna is the repository of all pleasure, repository of all Ananda, he is Ananda Swarup, the personification of Ananda has a specific form of Srimati Radha Thakurani. So she is the controlling deity of Hladini Shakti. So Krishna has unlimited proclivities of enjoyment, and Srimati Radhika is that Hladini Shakti who gives Krishna all facilities for enjoyment. So we heard about 25 qualities of hers
There are also 64 qualities, functions of Vladini Shakti mentioned. So Nritya, dancing, Gita, singing, Vadya, playing on musical instruments, Natya, performing theatre, Alekya, painting, and so many others, there's no end to that. So from Srimati Radhika, so many Kaya Vyuha gopis are coming. So Lalita and Vishaka, most important of them, were celebrating Lalita, Lalita Saptami yesterday. So we have just heard about the story of Srimati Radhika's appearance. Sometimes she appears in Vrishabhanupur Varashana and sometimes in Raval. Also, we'll visit both places during Rajamandala Parikrama. So, in his Lalita Madhava, Shri Rupa Goswami Patil related the other story of Srimati Radhika's appearance told by Purnamasi Yogamaya Devi. So, Purnamasi Devi told that once Vindhya Parvat, or the Vindhyachal mountain, became very envious of the great Himalaya mountains, because the daughter of Himalaya mountains, Parvati, or the Sati, the daughter of Lord Shiva, Parvati. Parvati, yes. So, the wife of Lord Shiva. So she got Lord Shiva, and Vindhya Parvat decided to have a fortunate daughter whose husband could defeat Mahadev in fighting. So, full of that desire, Defeat the good fortune of Himansha. Because both are mountains. Both yes, are defeat competition. Mahadev in fighting. No Mahadev. Mahadev, yes. Himalaya. Mahadev. Defeat Mahadev, Shiva in fighting. So, that's why What does that have to do with it? she wanted to have a husband who would be able to defeat Mahadev in fighting. And then praying to Lord Brahma, Where are you reading this? praying to Lord Brahma. So, praying to Lord Brahma. Vindhyachal wants daughter. Because normally people don't want to daughter. Whose husband? Just relax. Yeah. No. Because when Parvati came and she became wife of Shiva, Yes. then Vindhyachal cannot tolerate because this Himalayas name going too much. Because his Son-in-law. daughter, his son-in-law is like Shiva. So he's too much inside, no? He's uncomfortable, like some pride, no? Because Vindhyachal he was some nature to pride. If one time Sumeru Parvat becoming very big, he also like to be bigger than Sumeru Parvat. Then Agast Muni came and he did Pranam, and then Agast Muni just saying, okay, stay like that. So he cannot be more than higher Sumeru Parvat. So he was that like nature, so he cannot tolerate the Himalayas glory. So he also did tapasya for Brahma. Yes. And when Brahma saying what you want, he don't want son, he want daughter. So saying this son for us, normally people like son, daughter very less people want, no? Because they have no son, then first we want to son, maybe after daughter. But he have no any son, and he want to daughter. Two daughters, Chandramani or Radha and Chandramani. Because he want Then his his daughter daughter will be more. His daughter should be very strong quality to full of fortune, who can be wife or some person who can defeat to Shiva in war. Yes, that's what you were saying. You're saying another. No. Anyhow, this one is married to Krishna, and Krishna become beloved rather than each other. Who can defeat to Shiva in war. He wants a greater son-in-law than Shiva. And Krishna defeat to Shiva in war. That's Krishna. Banasa Sangram. So, he was. Like to Shiva defeat. Some who be my daughter husband who can defeat to Shiva. This time. Sangram must have defeated. He wants a son-in-law greater than Shiva. So, God Premanande. Keep going. Okay, 5 minutes ago. Someone mistranslate them. So anyway, so then Vindhyachal, as we just heard, started austerities, worshipping Lord Brahma. So finally Lord Brahma said, Tatastu, so be it. So Vindhya was very happy to receive that boon. But
after the boon was received, then he was thinking, oh, who could be, what person could be greater than Mahadev himself? It's quite impossible, generally. But then he realized that only Lord Krishna can be more, can be greater than Lord Shiva. That's why This might have some good quality mind. Why not using to that? Where's the good Some quality? good no, this is just a sound regulation, of course. Sometimes mic also dependent. Not good mic, then sound also. Better who put it, who giving solution? No one turns now. After it's given, okay. So Brahma was thinking. So then Brahma gave that benediction and he was thinking, who would be that person? So Lord Krishna is eternal, Radharani is the eternal counterpart of Krishna. So, but how can this happen? So then Brahma underwent severe austerities to please Radharani. So when Radharani was pleased with Brahma, then she decided, alright, I will become the daughter of Vindhyapali. So Radharani agreed, and then Yogamaya arranged for two girls, Radharani and Chandravali, to become the daughters of Vindhyapali. So instead of Vrishabhanu and Kirtila, but actually they were already in the womb of Vrishabhanu. Radhika was in the womb of Vrishabhanu, Chandravali was in the womb of Chandrabhanu, but by Yogamaya's sanction they were transferred to the womb of the wife of Vindhyachala. So as a result, the wife of Vindhya begot two daughters who were very beautiful. In the meantime, Krishna appeared in Mathura. So Brahma realized actually, yes, Krishna has to appear. So then we heard that story 2 weeks ago. Vasudeva took Krishna to Gokul and left him with Yashoda and brought Yogamaya in the form of Mahamaya to Mathura. So then Yogamaya manifested before Kamsa, oh foolish Kamsa, your killer has been born in another place. So then Kamsa, being very, very afraid of his imminent death, told Putana to kill all those infants who had been born in those days around Vraj. So then Putana was catching all the young girls, and she caught also, at the time of name-giving ceremony, those two little babies, Radharani and Chandravali, were put outside, and Putana grabbed them and started carrying. So then Vindhyachala engaged all of his brahmanas with all of their strength to stop Putana. So since they were powerful, Putana started losing her strength. So because of the power of the curse. So then she was not able to carry the two girls any longer, and she had to release them. So then Radharani and Chandravali fell in two different places. Radharani fell in that place where Yamuna was flowing, in Raval. At that time, Yamuna was flowing in Raval. So then Mukara found her, actually, that birth. So Mukara showed to Kirtida Devi, and she said that, oh, actually I heard from Yogamaya that that's the eternal daughter of Vrishabhanu and you. So at that time she was found there, and Chandravali appeared in another place. So then when Kamsa heard from Yogamaya, Mahamaya, that oh, your killer will be born in another place, then Mahamaya also said that your killer's, means Supreme Personality's counterpart, Radhika, will be also born soon, and all of her confidants, all of her close associates, Lalita, Padma, Bhadra, Shabi, and Shyama, will be also born nearby. So your end is imminent.
So sometimes Srimati Radhika comes in this way, sometimes she comes in the other way. So anyway, her appearance is glorious because she is the source of all inspiration for Krishna. She is Krishna's all in all. And since she is always thinking of Krishna, whether she is in any condition she can be, she is always thinking of Krishna. That's why her name is Krishna Devi. Krishna Devi. She's always also Krishna Mayi. So her mind is always concentrated on Krishna. That's why she is all made of Krishna, and that's why we remember her like that. So Krishna Mai, Krishna Devi Srimati Radha Thakurani ki jai, Nitai Gaur वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्द समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समायुक्तं वृन्दावन मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 गौरांगे मधुरिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रां चलेद्राभिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तन्मा मध्ये गतौ च मन्दिमा श्रोण्यश्च प्रतिमा भ्रुवो पुटुलिमा बिम्बाधरे सोनिमा शिलादेते हृदि रसेन जडिमा ध्यानस्तु मे गोचर सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मा निपला श्रेष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्र भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज निपला श्रेष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति वंदना। आज श्री राधाष्टमी तिथि है, राधा जी का जन्मदिन। श्री सच्चिदानंद गौर हरि इस तत्व को जगत में प्रकाशित किए। को वा जानाति राधम परम रस चमत्कार माधुर्य सीधा। जबकि उनकी महिमा शास्त्र वर्णित है, लेकिन कोई बताने वाला हो। काल के प्रभाव से रस और तत्व तिरोहित हो गया, लुप्त हो गया, लोगों की धारणा से अलग हो गया। उनकी वस्तु उनके सिवा कोई बदला भी नहीं सकता, क्योंकि जिनकी वस्तु है वही अच्छा से अपने संबंध में जानते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि और कार्य तो और स्वरूपों के द्वारा हो सकता है, लेकिन मेरा जो ब्रज विषयक जो भक्ति है, भाव है, जो धारणा है, वो केवल मैं ही दे सकता हूँ कि मेरा स्वतंत्र अपना है। इसमें किसी को मैं इंटरफियर नहीं होने देता हूँ, अपने पास रिजर्व करके रखता हूँ। इसलिए युग धर्म परिवर्तन है, अंश है थे। लीला अवतार, युगावतार, मनमंत्रावतार, सत्यावेशावतार, ये सब अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग विभाग के कार्य करते हैं। ये सब अंश कला है, लेकिन मैं स्वयं जो हूँ वो रसिक शेख हूँ।
कृष्ण के मूल स्वरूप है वो रसिक शेखर, रस है, लेकिन अपने रस में उतना तृप्त नहीं, इसलिए वो रस न बन के वो रसिक शेखर बनना चाहते हैं। विलक्षण जबकि श्रुतियों ने उनको रस बोला, रसो वैसा, सब कृष्ण के ऊपर दृष्टि डाल के बैठे हुए कि रस है, रस लो, उससे रस लो। और ऐसा आया, रसो हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, इस रस को पाके पूरा विश्व आनंदित होता है, सब उस रस में डूबते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो कृष्ण जो है अपने रस से तृप्त नहीं, क्योंकि अपने रस में एक आत्मरामता भाव है, और अपने आप में अपने स्वरूप में कितना रमन करेंगे। आत्माराम का सुख एक सीमा तक है। कोई व्यक्ति अकेले जमुना के तट पर बैठ करके और अपने आप में मगन रह सकता है, खुश रह सकता है, लेकिन उसको वैचित्री नहीं है। खुश रहने के लिए किसी प्रकार से खुश रह लो तो, लेकिन खुश में तरंग उठे, भाव की माधुरी हो, किसी आस्वादन हो, जो मतलब वाणी से जिसको कहा नहीं जा सकता, वो चीज कृष्ण ढूंढते हैं। और उसी को प्राप्ति करने के लिए रस न होकर के अपने को रसिक की श्रेणी में ले। अभी राजगोस्वामी कहते हैं रसिक शेखर कृष्ण, रस को रसिक बनाना, मतलब अपने स्वरूप से उतना तृप्त है जितना उनको दूसरे से भाव चाहिए, जिसको पररामता बोलते हैं। और उस लिए उन्होंने क्या किया, अपने भाव को उनके स्वरूप से हलादनी प्रकट हुई, कृष्ण से प्रकट हुए, कृष्ण को अतिशय आह्लाद प्रदान कर। इसलिए कहा गया राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादनी। जब राधा और कृष्ण दोनों में जब प्रेम की इच्छा हुई, प्रणय की इच्छा हुई, जबकि दोनों तत्व अलग नहीं, एक ही है, एक ही स्वरूप में। कैसे राधा कृष्ण सदा एक ही स्वरूप, सदा से निरंतर, ऑलवेज वो एक ही स्वरूप, अचिंत्य, अलग होके भी एक है और एक होके भी अलग है, इसको अचिंत्य कर सकते। दोनों अलग होके भी अलग का भाव नहीं रखते, दो स्वरूप है, लेकिन जैसे दो होने से, जैसे हम जब उसको प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट और सेकंड, जैसे आई और यू, ये भी एक व्यवहार है। वो भी जब आई और यू बोलते हैं तो दोनों खूब हंसते हैं। यहाँ पर तो आई मतलब मैं और तुम दो हो जाते हैं, लेकिन वो जब दोनों बात करते हैं तो एक इंटॉक्सिकेट है, क्योंकि हम दोनों में आई और यू का कोई मतलब ही नहीं। तो फिर क्यों बोल रहे हो? बोले व्यवहार के लिए बोलना पड़ता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे, मैं और तुम नहीं बनाएंगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा, फिर किसके साथ वार्तालाप करेंगे। लेकिन वो व्यवहार होने पर भी नित्य एक ही, लेकिन एक होने पर भी अलग होकर के उस रस को बचित्र लीला रस स्वादी पे धारित होगी। तो उनसे जो स्वरूप शक्ति जो राधा रानी प्रकट हुई, अचिंत्य है। ऐसे तो भगवान की सारी शक्तियां अचिंत्य, जब मूल अचिंत्य है तो मूल से जो भी प्रकट होता है वो सब अचिंत्य होता है, क्योंकि अचिंत्य से अचिंत्य का ही जन्म होता है। जब मूल का जब समझ पाएंगे तो बाकी उनका जितना भी वैचित्री है वो भी समझ में नहीं आता। इसलिए कहते हैं शक्तया सर्वभाव नाम अचिंत्य ज्ञान गोचरा। कृष्ण के जो स्वरूप शक्ति का जो भाव है, जो राधा रानी उनकी स्वरूप शक्ति है, और उनके जितने भी भाव है, बहुत सारे भाव है, जिसमें विभाव, अनुभाव, सात्विक, संचारी, संचारी के 33 प्रकार है, सात्विक भाव के 8 प्रकार है, अनुभाव का अनेक प्रकार है,
बहुत सारे उसमें विभोग, कुटमीत, मोटाई इत्यादि और कई कई भाव है। ऐसा अनुभव जिसको जैसे किल किंचित, ऐसे बहुत सारे लोगों से बड़े सब अनुभव है। ये सारे उनके भाव की वैचित्री है और कोई भी भाव वैचित्री अपने आप में अचिंत्य है। कृष्ण भी भगवान होकर के भी उनकी भी बुद्धि से ऊपर चला जाता है, चिंता से ऊपर जाता है, केवल अनुभव कर सकता है, जिसको बोलते हैं स्वसंवेद। जो राजा रानी कृष्ण के दर्शन के लिए इतना व्याकुल है और अचानक कृष्ण उनके कुंड में आ जाए, एक ऐसा विभोग एक कैसे से करने लगते हैं, मुंह इधर कैसे लगता है, इनको मैं जानता नहीं कौन है क्या। लेकिन वो जो भाव जो प्रकट हो रहा है उसका कृष्ण अनुभव कर रहे हैं। हृदय में इतना प्रीति है लेकिन फिर भी एक मान का भाव, एक मतलब बहुत प्रकट हो जाए तो उसमें क्या स्थिति है। इसलिए कहते हैं सरित इवान नवे मधुनि लीलु रसेस रस। रस की गाढ़ता उसको कहते हैं जैसे हजारों नदियां समुद्र में समाने के बाद फिर उनका कोई अलग अलग नाम नहीं रहता और एक छोटे छोटे विभाग में नहीं रहते, एक विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेते। और जैसे हजारों पुष्पों से भौरा मकरंद लेकर के जब इकट्ठा करता है तो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग फ्रेगनेंस, अलग अलग फ्लेवर्स है, लेकिन जब मिलता है तो वहां पर अलग अलग का परिचय नहीं रहता, वहां फिर एक मधु का छत्ता बन जाता है और उसमें एक ही स्वाद, मधु, मीठा मीठा। तो किस फूल से कहां से कौन कौन से मिलकर बना, तो एक रूपता को प्राप्त करते हैं और अखंड स्वाद होता है। रस मतलब अखंड, उसको टुकड़ा नहीं किया जाता और उस अखंड रस को कृष्ण जो अखंड स्वरूप है अनुभव करते। जीव को उसमें से अगर एक गुण मिल जाए तो बहुत एक गुण जो मिल जाए मन की कली खुल जाए। जैसे मधुमक्खी को छाता के गुण नहीं, वो डूब जाएगा, लिपट जाएगा, पूरा अपने को उसमें डुबा देगा, उतना ही उसके लिए पर्याप्त है। और वही हमारे लिए उसका उस भाव का जो माधुर्य है, तद भाव उल्लास रति जिसको कहते हैं। लेकिन ये सब महाप्रभु की कृपा से प्रकट, बड़ा विचित्र वस्तु है, लेकिन महाप्रभु जी रूप गोस्वामी के माध्यम से इसको प्रकट है। इसलिए उस रस को लाने वाले महाप्रभु कृपा से रूप गोस्वामी, उनके लिए बोलते, उनको लिए कहा गया रस। वो रस का चार्ज न करो, रस का चार्ज, रसाचार, रसाचार, जो स्वयं अपने आप में रस नहीं, मतलब जो राधा जी के स्वरूप है। राधा जी अपने स्वरूप को भेज दिए कि तुम मेरे बारे में ठीक ठीक सब बताओ, क्योंकि मेरे बारे में मेरे सिवा कोई बोल नहीं सकता। इसलिए उनको नहीं जुटती है, क्योंकि दासियां उस चीज को एक ही सूक्ष्मता को समझते हैं। और जब रूप गोस्वामी जिस जगत में आए महाप्रभु की कृपा से, तो उसके बाद ही इस रस का बाढ़ आया संसार। रूप गोस्वामी महाप्रभु से पहले सुनने में नहीं आता है, छुपा है, कौन उसको प्रकट करेगा, कौन उसको निकालेगा। हजारों शास्त्रों से, जैसे भौरा हजारों फूलों से वो मधु मकरंद निकाल करके मधु बनाता है, तो भौरा ही कर सकता। बाद में फिर छत्ता में नठट लाठी डंडा मार करके तोड़ मोड़ कर कोई भी बोले कि मैं पीऊंगा, मैं करूंगा, लेकिन जो बनाता है उसको कितना परिश्रम होता है। हमारे पास वो गुण नहीं है कि हम कोई रस को इकट्ठा करके उसको मधु बना, लेकिन रूप गोस्वामी जी भौरा की तरफ है ना, जब तू बन फूल फलत नाना विध मनोराजी अरविंद सो मधु कर बिनु पान कौन जाना। वास्तव में उस मधु का बनाने की कला भौरा ही जानता है। उसके बाद में भले सब उस मधु को पी ले, लेकिन भौरा जैसा मधु को बनाकर वो जैसा पी के अनुभव करता है, साधारण लोग को ऐसा नहीं होता। उसके लिए फिर वैसा ही भौरा बनना पड़ेगा, उनके अनुगत, उनके तदात्म में जाना पड़ेगा।
इसलिए रूप गोस्वामी जो रस दी है, जो राजा जी का स्वरूप का जो जगत में वर्णन की, बड़ी विनम्रता के साथ में कहते मैं रूप हूँ, बहुत लघु हूँ, तुच्छ हूँ, लेकिन मेरे से महाप्रभु जी ने सब चीज प्रकट कराए। अधिभक्त मतलब प्रकृति लघु रूपाद बुधा। इसलिए हे बुद्धिमान जनों, ये जो रस है, जो भाव जो मैं प्रकट कर रहा हूँ भक्ति रसायन सिंधु ललित विदग्ध माधव में, वो आप लोगों को सिद्धि प्रदान करे। ये हरि गुणमयी जो लीला है, जो मधु के समान है, वो आप लोगों को सिद्धि प्रदान। आप मेरी ओर मत देखो, मैं जैसा हूँ जो हूँ, लेकिन मुझसे जो प्रकट हुआ है उस चीज को तुम लोग उत्पादन करो। दैन में बोल रहे हैं, वो बोले कि जैसे कोई पुलिस जाति वन में रहने वाले कोल भी छोटे जाति के लोग, वो भी दो लकड़ी को लेते ऐसे रगड़ करके आग प्रकट कर देते हैं। तो आग फिर ये नहीं कहता कि मैं तो शूद्र जाति से, तू छोटे जाति से प्रकट हुआ हूँ और मैं सोना को शुद्ध नहीं करूंगा। आग का अपना गुण होता है, किसी के द्वारा प्रकट हो, उसमें सोना डालेंगे तो उसका मल को जला देता है, जला देता है, खत्म कर देता है, तो शुद्ध बना देता है। तो मेरे द्वारा जो प्रकटित जो रस है, ये अग्नि के समान है, इसमें वीरा भी है, ताप भी है, इसमें माधुर्य मतलब मिलन और वीरा दोनों का इसमें समावेश है। इस भाव में जो जिनका मन खत्म हो गया वो उसको उत्पादन करेंगे, जिसको अगर कुछ मन है, चमक नहीं है, तो उसको जलाएगा। दोनों काम कर। तो ये आप लोग सिद्धि देव विधान की, इसलिए रूप गोस्वामी की कृपा से सारे आचार्य, सारे गुरु वर्ग बाद में विशेष करके अगर इस रुचि वाले कोई भक्त तो कुछ ज्यादा इसमें डूबे, और बाकी लोग तटस्थ से इनको प्रणाम किए, इनका अनुभव किए, जितना उनका अधिकार है उतना सुने, उतना वर्णन किए। पूरा डिटेल्स में तो सब नहीं जा सकते, उसके लिए तो वैसा ही मंजरी होना पड़ेगा, वैसा दासी होना पड़ेगा। जैसे गुरु जी सेवा को उनका चित्र बनवाए तो उस भाव में भावित थे। राधा कृष्ण के चित्र देखेंगे वो क्या उसमें उन्होंने अपना भाव दिया। वो सारे अशेष हाव भाव जो है राधा कृष्ण के परस्पर का, जितने जो भाव हो सकते हैं उनके मुंह में देखेंगे, उनके स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। तो सारे भाव मिलकर के एक रस का वो पहाड़ बन गए, और वहां पर अद्भुत उपस्थिति होती है। तो उनकी कृपा से, रूप गोस्वामी कृपा से इन चीज का अनुशीलन किए, और उस कृपा से जगत में ऐसे बदला है। तो उसमें रघुनाथ गोस्वामी पाद जो पहला रूपानुग सनातन गोस्वामी है, लेकिन रघुनाथ गोस्वामी कुछ ज्यादा ही उनके साथ चिट्ठी ठोटी करते हैं। मतलब रूप गोस्वामी बड़े होने के बाद भी एक स्तर पर एक ऐसा स्थिति आ जाता है जिसको बोलते हैं विश्रम में न गुरु सेवा। मर्यादा है, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी एकदम बराबर के भाव में आ जाता है। गुरु जी के पास एक बार ऐसे गुरु जी के साथ बैठे थे, तो बैठे हुए गुरु जी बोलते विश्रम माने क्या समझता है, गुरु के प्रति जो विश्राम भाव है उसको क्या समझता है। सखाओं में जो विश्राम का भाव होता है उसमें तो तू मैं गाली गलौज भी हो जाता है, सारे ऐसे के तैसे कुछ भी बोल लेते हैं। जब बोले शिष्य क्या गुरु के साथ ऐसे करेगा, विश्राम के साथ क्या करेगा। बोलो हाँ कुछ मर्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी यदि विश्राम होगा तो कई बार परिहास आदि हो जाता है गुरु शिष्य। इतना नहीं होगा जैसे सखा लोग करते, लेकिन वो एक सीमा में करेंगे। जैसे रति मंजरी, रूप मंजरी के लिए बोल रहे हैं, उस भाव उल्लास रति का जब उन्होंने अनुभव करा एक तदात्म क्या होता है, वो अपने अपने स्वरूप के द्वारा दिखाए उनको। और जब उसको उनको लोभ हुआ, वो भी तदात्म के जब अनुभव किए तो उसको लिख लिए, छोड़े, और उसी को लिख कर उनको प्रणाम कर रहे, मंगलाचरण कर रहे। रूप मंजरी सखी प्रतिथा पूरे सुंदर, रूप मंजरी से परिहास कर रहे हैं कि आप इस ब्रज मंडल में बहुत प्रसिद्ध हैं, कौन आपको नहीं जानता। रूप मंजरी सब जानते हैं, क्योंकि राधा जी के प्रधान, सबके प्रधान अध्यक्ष है, सारे मंजरियों के अधिष्ठात्री देवी, सारे मंजरियों के अध्यक्ष है।
आपसे ऊपर कोई नहीं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध कम रूप मंजरी सखी प्रतिका पूरे पुंसा परस से बदलम नहीं बच सकते। आप किसी भी पुरुष का मुख नहीं देखें, यहाँ तक कि स्वतंत्र रूप से कृष्ण का भी दर्शन नहीं करते। जहाँ पर राधा दर्शन कर रहे हैं बस उनके मुख के लोग देखते रहते हैं। इनको कृष्ण दर्शन करने के बाद इनके मुख में क्या भाव, क्या प्रसन्नता है, क्या दुख है, क्या वेदना है, बस उसी को पढ़ते रहते हैं। और जैसे जैसे उनके भाव मुंह में जो भाव स्फूर्ति होता है उनके स्वरूप में वही वैसे प्रकट होता है। अगर उनको दुखी देखते हैं तो एकदम से दुखी हो जाते हैं, अगर उनका मुंह सूखा है तो एकदम से कांप जाते हैं कि मेरे सखी को राधा ने कौन सा अरे जोर से शब्द के राधा रानी के बच्चियां आ गई है, उनकी हरनी आ गई है और कृष्ण अंदर कुंज में थे। और मंजरी रूप मंजरी के जब शब्द उनके कान में पड़ा तो उनका मतलब धड़कन बढ़ गई कि अगर अभी तुरंत यहाँ से नहीं भागा नहीं गया तो कितने बड़ा निकल गए। और जब बाहर में रूप मंजरी मिले तो उनको पकड़ लिए, सामने उनके कुंज से निकलते उस समय हाथ पर जोड़ने कर गया। ये बात सीधे सीधा राधा जी से नहीं कहना, कुछ घुमा के बोलना। और कहते ठीक है हरिश्चंद्र जी, सत्यवादी जी, आप जैसे हैं वैसे कहूँगा, लेकिन ऐसा आप करते हैं तो ठीक नहीं। इस प्रकार उनके अनुनय विनय करके वहाँ ले जाते हैं, समझ करके उसके ऊपर अपना सोच लगाए क्या क्या, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। तो तदात्म भाव की इसी चमत्कार है तो रूप रघुनाथ उसके बाद उसको पहले अभिव्यक्त करने वाले रूप गोस्वामी छुपा दिए। वो जो अनुभव किए वो अपने आप में संवेद करके रख दिए, लेकिन रति मंजरी रघुनाथ उसके पास सोचेगा अगर इस चीज को व्यक्त नहीं करूंगा तो आने वाले पीढ़ी कैसे भजन करें। तो हम लोग कृपा करके इतनी रहस्य की बात को रखते उस रूप गोस्वामी का जितने लोग थे, जितने भक्त सब उनके चरणों में सिर रख करके उस चीज को अनुभव किए, क्योंकि रस का पूरा समुद्र थे, वो रस के कुआं थे। वृंदावन के सारे माधुरी प्रेम सुधा के कुक महापुरुष ने को कुआं बना दिया कि तुम हमारे स्थान पर बैठ गए, तभी इस चीज को तुम दे सकते हो। महापुरुष तुमको समय कहते तुम जो मैं ही हूँ। कभी कभी करना प्रभु करना पड़ा कि प्रिय स्वरूपे दैहिक स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजा रूपे निजान रूपे प्रभु रेख रूपे तत्तान रूपे स्वविलास रूपे। कितने प्रिय है राधा जी के महापुरुष कौन कर सकता, जहाँ पर कोई बात छुपी नहीं है। कोई कितना भी प्रिय हृदय के वस्तु को छू लेना सबकी बस की बात नहीं, तो बहुत बहुत प्रिय हो गए। और रूप मंजरी रूप गोस्वामी की विशेषता है कि महापुरुष क्या साधारण साहित्य दर्पण का श्लोक पढ़ रहे, साधारण काव्य का श्लोक पढ़ रहे, किस भाव में पढ़ रहे हैं किसी को पता है। स्वरूप दामोदर ललिता की साकादि राय रमन जानते थोड़ा अनुभव कर, क्योंकि बहुत उनके अपना प्राण पेश सके, लेकिन और किसी को पता नहीं। और ये उनको केवल सुने नहीं अनुवाद कर दिया। रूप गोस्वामी की विलक्षणता है कि उस काव्य की वस्तु को रस में परिणत कर दिया। तो जड़ीय काव्य की बात आप कह रहे हैं, लेकिन राधा कृष्ण के लिए तो अप्राकृत काव्य होना चाहिए जिनमें उनका नाम सीधे सीधे आ जाए और उसका अनुवाद। प्रिय स्वयं कृष्ण सहचर्य कुरुक्षेत्र मिलित तथा हम सा राधा तदिदम संगम सिखो तथा पंता किरण मधुर मुरली पंचम दुसे मनो में कालिंदी पुण्य विपुनाय इस पर रहती। कितना चमत्कार है, कहाँ वो बोल रहे थे जब कौमार है ऐसे साधारण काव्य पाठ कर रहे हैं और उसको राधा जी के परक मन को परिणत कर। तो उस समय के लोग जब ये सब सुने देखे तो सब इनके चरणों में आया। विशेष करके हरिराम व्यास जी जो मध्वाचार्य की परंपरा में वो जब सुने वो देखे तो उन्होंने किस चीज को स्पष्ट अपने ग्रंथों में वाणी में लिखे। बोले आप भक्त सभा के भूप हैं, आप हमारे आचार्य कुल के चतुर चमूक है, सेनापति हैं, आप रसकूप है, वृंदावन के सहज मार्ग, आप भक्ति के पिता है, भक्ति के संस्थापक है।
जय जय मेरे प्राण सनातन अगतिन के गति लोग भैया जोग जग के चूप। भक्ति जोग पहले भक्ति थी, लेकिन वो भक्ति रस नहीं थी। आपने उस भक्ति को भक्ति रस के रूप में बहाया सारे वर्णन की। उस समय के और जो थे बल्लभाचार्य जी के जो पुत्रगण विठलाचार्य आदि, ऐसे बल्लभाचार्य जो वात्सल भाव के थे, जब विठलाचार्य आदि इनके भाव को सुने तो उनका भी ये भाव के प्रति एक लोभ हुआ, और वो लोग भी प्रार्थना में इसी तरह से प्रार्थना करते जैसे हमारे रघुनाथ जी पाठ करते। कृपयति यदि राधा, ये बल्लभाचार्य विठलाचार्य उन्हीं के लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि यदि राधा रानी कृपा हो जाए तो बाधिता शेष बाध, संसार के जितनी भी बाधा है सब बाधित हो जाएंगे। कोई हमको नहीं रोक सकता, हम कृष्ण को पा लेंगे तो सेवा करेंगे, लेकिन पहले उनकी कृपा चाहिए, क्योंकि वो भक्ति स्वरूप है। जब तक वो सेवा की भक्ति की वृत्ति नहीं देंगे तब तक कृष्ण नहीं मिल सकते। इसलिए बिना राधा कृपा प्रसादे न कृष्ण प्राप्ति न जाए। ऐसे पुराण में बिना राधा ने कृपा प्रसाद कृष्ण की प्राप्ति नहीं है। इस चीज का अनुभव क्यों लिखते हैं? यदि वो कृपा करे तो सारी बाधाएं समाप्त हो जाए। किम अपरम अवशिष्टम पुष्टि मार्जादयोर में। भक्ति के दो मार्ग है, पुष्टि मार्ग और मर्यादा। पुष्टि को रागानुगा बोलते, मर्यादा को वैदिक। उनको संग वैदिक और रागानुगा की संज्ञा थी, और बल्लभाचार्य कहते हैं पुष्टि और मर्यादा। तो कहते हैं कि यदि उनकी कृपा हो जाए तो किम अवशिष्टम, फिर कोई भी मार्ग होगा वो पूर्ण हो जाएगा, चाहे वो विधि मार्ग वाला हो या रागानुगा हो, रागानुगा परिणत हो जाएगा। और अगर उसमें कोई त्रुटि कमी भी रह जाएगी तो कमी नहीं रहेगा, पूर्ण हो जाएगा। तो उनकी कृपा से कोई कमी नहीं, जैसे कृष्ण के नाम लेने से सारे अपूर्णता पूर्ण हो जाता है। जितना भी हम पूजा पाठ करते उसमें जो त्रुटियां रह जाती है भगवान नाम से पूर्ण हो जाती है। ऐसे राजा की कृपा होने से विधि या राग में जो भी कमी रह गए वो सब उनकी कृपा से पूर्ण हो जाए। इसलिए हरिराम व्यास जी लिखते हैं, हम तो राधा जी के बल अभिमान, काहू के बल भजन को काहू को आचार, और व्यास भरोसो कुंवर के सोवत पाओ कथा। वही भाव है कि पुष्टि मर्यादा में क्या रह जाए। जैसे मर्यादा मार्ग में बहुत आचार विचार है, विधि में बहुत नियम है। तो कोई लोग नियम को बहुत पालन करते हैं, कोई लोग राग को बहुत पालन करते हैं, लेकिन जो उनके अनुगत में सेवा करते हैं तो उनका ऐसे पूर्णता हो जाती है। यदि बदती किंचित, यदि उनके चरणों में सेवा में लगते संग्रह अवस्था में यदि वो मुंह से कुछ बोले, सेवा कर रहे हैं और कोई आदेश, मेरा वो वस्त्र उठा ले और मेरा कुछ तो कोई मेरा श्रृंगार है किसी कुंज में रह गया, हे रति मंजरी तुम वहां सिखा के दे, ऐसा कुछ अगर वो बोले आदेश करें तो बदती किंचित स्मरो हासो दित श्री। उनके बोलने से, मुंह खुलने से जो उनका दांतों की जो शोभा है, एक मुस्कुरा करके प्रसन्नता पूर्वक जब कुछ बोलेंगे और वो दर्शन होगा उनके सेवा करते समय, तो द्विज बर मणि पंख है। कहते कि श्वेत स्वान जब आकाश में उड़ते हैं, सादा सादा हंस, और वो पंक्ति बना करके ऐसे, तो कितनी शोभा होती। और उनके मुखार भी इनको दंग पंक्तियों को देख करके कि उन हंस पंख को कौन देखेगा। द्विजवर मणि पंक्तया और मुक्ति सुक्तया तदाति, जो मुक्ति होता है, मुक्ता इस वक्त तो सफेद होता है, तो आपके जो दंग पंक्ति है मुक्ता के समान। ये देखने के बाद न कोई हंस पंक्ति देखना चाहेगा और न कोई मुक्ता की पंक्ति देखना चाहेगा। इतना सौंदर्य आपके स्वरूप। और भी कहते हैं, हे श्याम सुंदर, हे शिखन शेखर, हे अस्मेर हास मुरली मनोहर। कृष्ण एकदम से आनंद में फूल ले रहे, हे दासी
मेरे लिए इतना संबोधन, इतना हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या चाहिए? श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधि प्रिय चरण किंकरिं। गुरु जी से बोलते थे कथा में जब राधाष्टमी होती कि आपके जो स्वामी उनके चरणों की दासी हमें बना। मुरली मनोहर श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मोहर राधिका रसिक। अब राधा जी के भाव के रसिक है, राधिका रसिक माम कृपा निधे, इसलिए हे कृपा निधे स्वप्रिय चरण किंकरिं। क्योंकि इसका मतलब कि आपके पास भी इतना नहीं, आपको भी कहीं से लेके काम चलाना होता है। आप कहीं से रस पीते हैं, जहाँ पर इतना सारा भाव रस है, मैं उनकी सीधे सीधे सेवा करना चाहता, इसलिए आप कृपा कर दो। आपके साथ उनका अच्छा संबंध है तो आप एक बार अगर इशारा कर देंगे कि हे राधिका इसको दासी के रूप में स्वीकार कर लो, तो राधा रानी मना नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्रिय है और प्रिय होने से आपकी बात को मान लें। इस भाव से मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। स्वतंत्र आप सब कुछ लेना देना नहीं। कृष्ण एकदम से बोले तो बड़े चतुर निकले, इतना विशेषण, इतना संबोधन, श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर, और मांग लिए कुछ और। हम तो सोचे से सीधे मांग लेंगे कि मेरे आपको मैं चरणों की दासी बनना चाहती हूँ, सीधे सीधे हमको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन व्रत का भाव ऐसा है कि सीधे सीधे पाने जाएगा तो हाथ नहीं लगेगा, उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए कबीरदास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गोपीकारी अनुगत बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजन नहीं पाए ब्रज ब्रजन नंदन। बिना राधा रानी का, बिना गोपियों का, बिना सखियों का अनुगत किए ऐश्वर्य भाव से और दूसरे भाव से या स्वतंत्र भाव से अगर कोई कृष्ण को पाना चाहता है और भजन करता है, तो कितना भी भजन कर ले, वृंदावन के कृष्ण उसको नहीं मिले। मीराबाई भी आई थी, वृंदावन से इसको नहीं रह पाई, द्वारका जाना पड़ा। तो कहीं न कहीं राधा जी के प्रतियोगी बन गए, जैसे लक्ष्मी जी। पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदा तभी तर पदांकम असंभाष तद भाव गभीर चित्तान कुट श्याम सिंदूर सस्यावका। बिना राधा जी के चरणों का आराधना किए और उनके चरण धूलि से जो सुवासित जो वृंदावन भूमि है, कुमकुम आदि के द्वारा भूमि की सुगंध बढ़ रहा है, ऐसे वृंदावन को यदि पाना चाहते हैं, अनाराध राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदा टविम तद पदांकम, ऐसे वृंदावन का आश्रय लिए बिना और जो इस भाव में भावित है, ऐसे रूप आदि गुरु घर इनके संग किए बिना, तदभाव भावित चित्त जो है असंभाष तदभाव गभीर चित्ता कुतः श्याम सिंधु रस श्याम रूपी रस समुद्र तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। तुम कह रहे हो कि मैं उसका अवगाहन कर लूंगा, कहाँ से होगा? वो बहुत दूर चले जाएगा, और जो कुछ ऐसा ब्रज में भाव दिखाया वो दूर ही चले। और जो रूप गोस्वामी जी के रूप मंदिर का अनुगत में रहे, उनको अपना शिक्षा गुरु माने, अपना आधार माने, रस माने, और उनसे जो लोग आस्वादन किए, अनुगत होकर के मुंह में तिनका दबा करके बिल्कुल दैन विनम्रता के साथ वो रस को प्राप्त, क्योंकि इसका पाने को उपाय ये तिरना तपी सुनी चेना तब यहाँ सिर उठाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर विनम्रता का समर्पण का मार्ग है। और भी कहते प्राणनाथ विश्वभानु नंदिनी। आप कौन है? कृष्ण कौन है? विश्वभानु नंदिनी राधा रानी के प्राणनाथ। उनका प्राण कृष्ण में बसते हैं, कृष्ण के प्राण उनमें बसते, दोनों के प्राण, एक प्राण दो देवी, शरीर दो है लेकिन दोनों का प्राण एक ही है। तो प्राणनाथ विश्वभानु नंदिनी श्री मुखाब्ज रस लोल सकत। कृष्ण जो है राधा रानी के चरण कमलों के मकरंद आस्वादन के लिए भौरे की तरह लोभी बन के वहीं मंडराते रहते हैं। इसका मतलब आपके चरणों में इतना सौंदर्य माधुर्य जो कृष्ण भी उनको हर समय सहलाते रहते, चाहते रहते हैं, हृदय में धारण करते हैं और अपने विरह वेदना, अपने ताप को दूर करते हैं। वृंदावनेश्वरी तवैव पदार बिंदम
प्रेमामृतैक मकरंद रसौगपूर्णम गिरिजार्पित मधु कतस्मर तापुगुलम निर्वापयत परम शीतलम आश्रय। वैसे आपके शीतल चरणों को मैं आश्रय लेना चाहता हूँ। श्री मुखाद रसलोल षटपद राधिका पद तले स्थिति, ऐसे राधा जी के चरणों में स्थित होकर के त्वम भजामि रसिकेन। कभी राधा जी का आदेश हो गया कि कृष्ण की थोड़ा सेवा कर दो, थोड़ा उसका भी भजन किया करो, नहीं तो दुखी हो जाएगा, तो उनके बात मान करके मैं आपका थोड़ा भजन कर दूं। स्वतंत्र नहीं, जैसे रति मंदिर उसमें कर रहे हैं, रूप मंदिर से प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा मांग रहे हैं। भजन श्री रूप मंजरी करालचित पाद पल्लव गोश्चंद्र नंदन भुजा अर्पित मस्तकाय हा मोदक कनक गौरी पदार बिंदम संवाहनानि सनकस्तव किम करिसि। एक रति मंजरी रघुनाथ गोस्वामी रूप मंजरी से प्रार्थना कर, राधा जी से प्रार्थना कर कि मेरा वो दिन कब होगा। श्री रूप मंजरी करालचित पाद पल्लव, रूप मंजरी आपके दोनों चरणों को अपने हाथ में लेकर चला कर रहे हो, अपने हस्त कमल में चरण कमल को लेकर के और उनकी सेवा कर रहे होंगे, अलता लगा रहे होंगे, महावर लगा रहे होंगे, उनको धो रहे होंगे, पोछ रहे होंगे, कितने प्रकार की सेवा जो होती है, ऐसे सेवा कर रहे होंगे, चाप रहे होंगे, चरण चाप रहे होंगे। और उस समय आपका जो मस्तक है वो गोश्चेंद्र नंदन भुजार्पित मस्तक है। कृष्ण के भुजाओं में अपने मस्तक को उनको तकिया जैसा मान करके रख दिया और सो रहे, विश्राम कर। गोश्चेंद्र नंदन भुजार्पित मस्तक, उस समय रति मंजरी रघुनाथ गोस्वामी करे हाँ मोदक कनक गौरी पदार बिंद। आप बहुत प्रसन्न होंगे और आपके जो पदार बिंद चरण कमल, हे कनक गौरी, हे कंचन गौरांगी राधे, संवाहनी कदा सनके करिष्ठ। कनक गौरी पदार बिंदम संवाहनानि सनके स्तव किम करिष्ठ। आप आदेश इच्छा करेंगे और एक रूप मंजरी जो है वो एक चरण दे देंगे, कहेंगे ठीक है तुम अभी सेवा कर लो, मैं कुछ और कार्य करके आ रही हूँ और उसमें सेवा करूंगा। और सेवा करते करते शायद आप इशारा करेंगे बहुत मेरी सेवा हो गई है, थोड़ा कृष्ण के लिए चरण दबा दो। तो आपके आदेश मान करके, क्योंकि मैं दासी हूँ, दासी तो कुछ ज्यादा अधिकार तो नहीं जमा सकते, दासी तो जैसा कहा जाएगा ऐसा सुना जाता है, किसी को दासी बोलते हैं। दासी मतलब जो किसी के हाथ दिख चुका है, स्वतंत्र नहीं है। लेकिन बस इतना हम हमारे प्रति कृपा करना कि आपके आदेश से मैं जो कुछ कर सकती हूँ, स्वतंत्र नहीं। इसलिए कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, उनके चरण दाब रहे हैं, लेकिन दासियां कृष्ण के चरणों को नहीं छूती, उनकी तरफ देखती नहीं। तब राजा ने करुणा करके, वो करुणामयी, नहीं ऐसा मत करो, ये भी बहुत परिश्रम किया, कितना वन में विचरण करके गौचारण करके कहाँ कहाँ गए हैं, तो ये भी थके हुए हैं, तो इनके भी चरणों को थोड़ा दबा और उस समय पुलकित होकर के कृष्ण की सेवा। तो जो भाव है रघुनाथ गोस्वामी, उसी भाव को यहाँ पर आचार्य वर्णन करें। राधिका पद तले कीर्त स्थिति, राधा जी को चरणों का अपना आश्रय बनाऊंगा और त्वम भजामि रसिकेन, उनकी कृपा से आपके और भी कहते हैं राधिका पद तले कीर्त त्वम भजामि रसिकेन। और शेष में कह रहे हैं कि बहुत ऊंचा मांग है, लेकिन बहुत विनम्रता पूर्वक मांग है। संविधाय दर्शन तीर्णम विभो प्रार्थ है कर्ज में महेंद्र नंदन। मुंह में तिनका दबा करके और बहुत विनम्रता के साथ कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि अस्तु मोहन तवाति बलवा जन्म जन्मनि मदिस्परी। आज आपके प्रिया के जन्मदिन है, इसलिए हे श्याम सुंदर, मैं अपने दांत में तिनका दबा करके आपके चरणों में अपना सिर रख करके, आप विभु में समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। आपके एक इशारे चुटकी में प्रलय हो जाता है, क्या नहीं होता। तो आप थोड़ा सा अगर इच्छा करेंगे
आपकी इच्छा करने से आपके जो अति से प्रिय जो राजा है, अस्तु मोहन तवाति बलवा जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिय, वो जन्म जन्म का हमारी प्रिया हो जाए, हमारी स्वामिनी हो जाए, जैसे रघुनाथ जी मनस इच्छा में सब करते हैं। मदीसा नाथत्वे प्रज विपिन चंद्र प्रज तदपुर सखित्वे विशाखा से छाली वितरणम ललिता प्रिय शरद। ऐसे मेरे जो ईसा जो है राधा रंग स्वामी कृष्ण है और मैं उनकी दासी हूँ। और उनके जो सखी विशाखा है, ललिता है, वो हमें शिक्षा गुरु के रूप में प्राप्त हो जाए इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार आज उनका जन्मदिन है। और हम लोग का ही सौभाग्य है, इन सब भावों को हम लोग इस समय ऐसे समय पर आए हैं जो अभी अभी सब बहुत ताजा ताजा है। अभी अभी सब गोस्वामी सब गुरु वर्ग अभिव्यक्त करके गए हैं, इसलिए चीज हमें मिला, सुनने को मिली। इस जन्म अगर सुन करके भी उसको हम धारण कर सकते हैं तो अगला जन्म जरूर वहां आपको भेज दिया जाएगा, विश्वास करिए। और अगर इसको नहीं समझ पाए, धारण नहीं किया, हमसे बड़ा दुर्भाग्य और कौन हो सकता है। ये सब समझ में, अनुभव में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, बस अब इसमें अपने को बिल्कुल डुबा दो, गला दो, कुछ भी ऐड ना रहे और दुनिया कोई भी वस्तु अपनी ओर न खींच सके। क्योंकि जिसको बड़ा लोभ हो जाता है कि छोटे मोटे वस्तु पर उसको छूटने की भी इच्छा नहीं होती। राधा माधव का जो स्वरूप है, जो सौंदर्य, जो माधुर्य है, वो प्राप्त होने के बाद, वो अनुभव होने के बाद और उससे बड़ा क्या हो। लावण्यं परमाद्भुतम रति कदा चातुर्यम अद्भुतम कांतिर काफी महा अद्भुतमा वर्तनो लीला गतिश्चाद्भुतम दीर्घभंगी पुनर अद्भुत अद्भुतमा दशस्मितम चाद्भुतम सा राधा अद्भुत मूर्ति अद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यम। फिर तो एक ही प्रार्थना रहता है कि वो कब में दास्ता देंगे, कब सेवा देंगे। तो उससे कुछ जगत में लावण्य नहीं है, कोई माधुर्य नहीं है। इसलिए कल बता रहा था मक्का में उनका जो स्वरूप है, जो रस है, जिसको बने हुए सारा अद्भुत मूर्ति अद्भुत रसम, उसमें जगत के कोई भाव लागू नहीं होता। जगत के किसी भी भाव के द्वारा या किसी भी दृष्टिकोण से उसको समझा नहीं जा सकता। साधारण लोग क्या सोचते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम कैसा हो सकता? कहीं न कहीं उनको नल दमयंती या शकुंतला दुष्यंत आदि की बातें मन में आता होगा, उनका जैसे प्रेम था। लेकिन ये जो राजा जी का जो भाव है, जो स्वरूप की स्थिति है, तो उनका विग्रह में जो सारे भाव का लक्षण है, जो सारे भाव अवस्थान करते हैं, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। जब लक्ष्मी आदि जब जहाँ पर हार मानते हैं, उमा रमा सत्या सचिन चंद्रा रुक्मिणी आदि रति गौरी लीला की तख्ती सौंदर्य किरने, इनके सौंदर्य के आगे रति गौरी लीला आदि सब देवियां जलती है, साप को प्राप्त करती है, पराजित को प्राप्त हो जाती है। सची लक्ष्मी सत्या परिभवती सौभाग्य वर्णन, सची देवी सत्यभामा रुक्मिणी, यहाँ तक कि ब्रज के जो सर्वश्रेष्ठ जो विपक्ष के जो चंद्रावली, विपक्ष में जब ऊंचा स्थान में बैठे जो राजा जी के बाद उषा के उसी का नाम आता है, नंबर आता है, तो चंद्रावली में जिनके भाव के आगे नवीन ब्रज वो भी बसीभूत हो जाते। चिपत रात्यम ताम हरिदयित राधम कम भजन, ऐसा जो कृष्ण प्रिय जो राधा है उनका भजन। तो उनका जो भाव है, उनका जो स्वरूप स्थिति है, वो जगत में तुलनीय नहीं है और उसको कोई अभिव्यक्त भी नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, केवल अनुभव कर सकता है अगर वो कृपा कर दे तो संवेद्य। क्योंकि जो भाव है, इसके लिए रूप से नहीं कहते कि भाव स्वसंवेद्य। कृपा कर देंगे, अगर सिर पे हाथ रख देंगे तो अनुभव में आएगा, आस्वादन में आएगा, वो रस को अनुभव करेंगे, वो उसमें क्या सुख है उसका एक अनुभूति होगा।
लेकिन अगर कोई पूछेगा कि कैसा लग रहा है, तो जगत के कोई विलक्षण वस्तु को बताने में शब्द कुंठित होता है, तो उस भाव को कौन बताएगा? वहां पर शब्द नहीं। इसलिए उद्धव जी जब इनके भाव को रूढ़ भाव का दर्शन किए तो वहां पर उन्होंने उसके लिए कोई टीका नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की, कोई अपना वाक्य नहीं बनाया। बोले हम जो कुछ कहूंगा वो लागू नहीं होगा। इन गोपियों का ही जीवन सार्थक है, राधा रानी का जीवन धारण करना सार्थक है, सफल है, जिनका कृष्ण के प्रति ऐसा रूढ़ भाव है जो मादनाक भाव से बनी हुई। कैसा भाव है? ऐसा भाव। इशारा करे, आप आकर के देखो, देखना है तो क्या आकर के देखो। शब्द में क्या कहूंगा? अगर मैं कहूँगा भाव 100 फुट गहरा है, गंभीर है, तो 100 बोलने से 200 हो जाएगा, और अगर 200 कहूंगा तो 500 हो जाएगा। शब्द में बांधने की चेष्टा जहाँ करो वहीं पर बंधन में नहीं आएगा, क्योंकि उसको कोई शब्द में बांध नहीं सकते, अनंत। इसलिए आकर के देखो। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं देख रहा हूं, अपनी आंखों से देख रहा हूं, अनुभव भी कर रहा हूं, बोल नहीं सकता। सर्वात्म भाव अधिकृतो भक्ति नाम अधोचरी विरहे न महाभागा महान में अनुग्रह। आप कृष्ण के प्रति ऐसा सर्वात्म भाव, कृष्ण की क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। मैं सुन करके वो जब एक शब्द हमको हमारे हृदय को छूता है तो मैं आनंद के समुद्र में डूब जाता, अनुभव करता हूँ। जब प्रेम व्यचित में दिव्य गुणवाद में बोल रहे मधु का कितब बंधु माज कृष्णांग शपथ में, तुम आ गया, वो नहीं है, तुमको भेज दिया, तुम मेरा पैर छुएगा, तुम अनुनय भी नहीं करेगा। अरे भौरा, तुम्हारा कोई ठिकाना है, तुम्हारा कोई निष्ठा है, तू जैसा तेरा मित्र दोनों एक ही जैसे है, तो जो जैसा होता है उसको उसी स्वभाव वाले दोस्त मिलते हैं। क्यों इधर उधर मर रहा था, वो भी मर रहा रहता, तू कभी यहाँ बैठा वहां बैठा, वो वैसे बैठता रहता, कभी उपजा हो गया, कभी कुछ हो गया। इस तरह के जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भाव में, जो बोल रहे हैं, जो आज तक कृष्ण का ऐसा कोई नहीं सुना है। सब डरते हैं कृष्ण का ऐसा बोलना मतलब अपराध हो जाएगा। जहाँ स्पर्श के द्वारा सब बंधे हुए हैं, ऐसा माधुर्य नहीं, ऐसा भाव कभी करती है, ऐसा गुणवाद, ऐसा जल्प प्रजल्प नहीं। ये सब उद्धव जी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए कह रहे कि महान अनुग्रह आप लोगों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया, जो आप लोग ऐसे भाव को मेरे सामने बोल रहे सुनने को मिला। इसलिए कृष्ण बोले जाकर सुनो, भक्ति क्या है, भाव क्या है, उनसे सुनो। तुम्हारे पास ज्ञान हो सकता है लेकिन साक्षात उसका अनुभूति नहीं, क्योंकि तुम ऐसे लोगों के पल्ले नहीं पड़े। उधर जैसे ज्ञानी भी चकरा रहे, बोले मैं जानता हूँ लेकिन जानने से क्या होगा, वो एक बूंद नहीं, इनमें समुद्र जैसा भरा है, कृपा करेंगे तो हमें भी मिलेगा। इसलिए आशा बहु चरण लेने श्याम करके प्रणाम की। बंदे नन ब्रज श्री राम, ब्रज के जो गोपियां उसके राजा जी के चरण की एक धूली की मैं वंदना प्रसिद्ध करता। ऐसा भाव, ऐसे वस्तु है। इन सब चीज को रूप गोस्वामी अपने ग्रंथों में, विशेषकर उज्ज्वल नीलमणि में सारे भावों का जो भ्रमर का जो 10 प्रजल्प है, उन प्रजल्पों को उदाहरण के साथ इतना सुंदर वर्णन किए जो न कभी पहले किसी ने उसको बताया न कोई बाद में बदला सकता। क्योंकि महाप्रभु एक बार ही आते हैं और इस कलयुग में आए और इस चीज को जगत में स्थापित करें। उसी को लोग देख करके, सुन करके, जान करके, घुमा फिरा करके बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन किसी के पास स्वतंत्र अपना कोई आधार नहीं, क्योंकि भगवान की वस्तु भगवान ही जिसको देते हैं उसी के माध्यम से जगत में प्रकाशित करते हैं। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी के धारा में आए। ऐसे महाप्रभु के अगर चरणों में भक्ति करेंगे तो तत्व सब अपने आप प्रकट हो जाए। जथा जथा गौर पदार बिंदे बिंदे भक्ति कृत पुण्य राशि ततो ततो सपति अकस्मात राधा पदाम बुझ सुदाम। जो चैतन्य महाप्रभु से भाग करके, बाएं दाएं करके, उनको झुठला करके भागना चाहते हो, इस जन्म में क्या कोटि जन्म उनको एक चीज नहीं मिले, और कुछ मिल सकता है लाइक बना है। क्योंकि राजा जी के भाव, एक भक्ति, एक प्रीति, उनके चरणों में अनुगत, उनके कृपा पाने पर वो कृपा करेंगे तो रूप मंदिर से भी मिलवा देंगे। सब उनके अधीन में। अगर हम उनके विरोधी होंगे, उनको ही नकार देंगे कि महाप्रभु कौन होता है,
तो फिर बाकी ये लोग हमको कैसे स्वीकार करें, क्योंकि सब उनके दास हैं। ये सब बार बार छाती ठोक के करें कि उनकी कृपा से हमको मिले। फिर भी जैसे प्रणया प्रवृत्तो बराक रूप होती, इस रूप को कुछ नहीं आता था, ये बराक था, कुछ था, लेकिन जिसकी प्रेरणा से सब प्रकट किया, वो देने वाला। अनर्पित चरण चिराग पूर्णयावतीर्ण कलो समर्पयित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सतीनंदन। तभी हम लोग का अभिषेक का समय हो रहा है, फिर बाद में महिमा को गान करेंगे। एक अशेष हाव भाव वाली कथा है, इसका कुछ सीमा नहीं है। अशेष हाव भाव धीर धीर हार भूषित प्रभुत शांत कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिस सिंहमाम। ये तो रस के समुद्र में अवगाहन करे, जहाँ पर कृष्ण जैसे रस को भी, समुद्र को भी अपने में डुबा देते। निर्धुतामृत परिमल कल्याणी बिंबाधरे वक्रम पंकज सौरभम कुहिता सलंगा विदंते गिरा अंगम चंदनम शीतलम तनुरियम सौंदर्य सर्वप्रसुभाग तम आसाद्य मदिंद्र पुरम राधे मुहुर्मुदते। कृष्ण कभी विष्णु किसी से नहीं कहते कि आपके दर्शन करके मेरे मन आत्मा इंद्रिय सब आनंद के समुद्र में डूब जाए, क्योंकि मेरे दर्शन करके लोग आनंद के समुद्र में डूबते हैं। हमसे कोई सुंदर होगा तब तो हमको डुबा दे, हमसे कोई मधुर होगा तब तो हमको डुबा दे। हमारा जैसा सुंदर कोई नहीं, मैं द्वितीय हूँ। उसमें बुद्ध जी कहते हैं माया बलम दर्शता के तब विस्मापनम स्वस्थ शोभा करते। कृष्ण का रूप कृष्ण को विस्मित करने वाला, कृष्ण के अंगन कृष्ण को विस्मित करने वाला, कृष्ण के सारे सौंदर्य माधुर्य उनको ही आनंद में डुबा देने वाला। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब आपके सामने मैं आता हूँ तो आपका जो गंध है, आपका जो वचन है, वो कोयल को तिरस्कृत करने वाला है। सारे जगत के जितने भी सुगंध हो सकता है उसके आगे तुझ पड़ जाता है। उस गंध मिलने के बाद संसार के कोई गंध दुर्गंध जैसा लगने लग जाए। परिमल बिंबाधरे वक्रम पंकज सौरभ कुहिता सलंगा विदंते। आपका जो श्री अंग का जो शीतलता करोड़ों चंदन के समान है। मैं शीतल हूँ, लेकिन मैं भी जब व्याकुल होता तो आपका आश्रय लेकर शीतल हूँ। इसलिए आपको प्राप्त करके हमारा मन दुखी। हाथी स्नान करते अब सरोवर है, अभाव के सरोवर है, बिहार क्या क्या कृष्ण बोलते रहते हैं। जो समुद्र है उस समुद्र उसमें समा जाता है। ये चमत्कार है, समुद्र को समुद्र में डुबा देना। सुना है कभी? लेकिन राधा जी का सौंदर्य माधुर्य ऐसा समुद्र है कि कृष्ण जैसे इतने बड़े समुद्र सौंदर्य माधुर्य का समुद्र, लीला माधुरी वेणु माधुरी आदि कितने मधुरिमा समुद्र है, उसमें डूब जाता। वो राधा रानी है और उनकी महिमा आनंद से अपार है। जिनकी वंदना ब्रह्मादि दूर से ही करते हैं, देवता दूर से सर्वस्तुति करते हैं। ऐसे राधा जी की जो सेवा करते हैं हमारे गुरुदेव, हम उनकी भजन करते। श्री महादेव जी नारद जी कह रहे ब्रह्मादि नाम महाराध्य दूरत सेवते सुरा तम राधिका जो भजते देवर से तम भजन। ऐसे राधा जी के भजन हमारे गुरुदेव कितना प्रेम से किए। ऐसा भाग है कि हमें ऐसे गुरु जी मिले, उनसे तो सुनने को मिला नहीं कि इस जन्म में सोच भी नहीं सकता। हमारे गुरु जी दोनों शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ऐसे भाव में डूबे रहते, कितना डिमांड सोच नहीं सकता। उनका जब उत्सव होता था खूब सेवा करते। गुरु जी कथा बोले पता है सारा विश्व कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं, कृष्ण कृपा के लिए व्याकुल होते हैं। लेकिन हम अगर यहाँ बैठे और कृष्ण अगर हमारे पास आ गए और मेरे मुंह की तरफ देखना चाहेंगे तो मैं ऐसे कर लेता। मुझे मत देखो, देखना है तो उधर देखो। मैं दासी हूँ, दासी का सामर्थ्य क्या होता है? देखना है तो मेरे स्वामी को देखो, मेरे को देख के तुम्हें क्या मिलेगा इत्यादि इत्यादि। कृष्ण के लिए पहेली है, कृष्ण जिनके लिए ललचाते हैं बोला एक ये है। और कृष्ण को देख के कौन नहीं व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से मतलब अपना निष्ठा रखते हैं राधा जी के प्रति। ऐसा उनका बहुत सुनने से रोमांच हो जाता था, आंख में आंसू आ जाता था, क्या विलक्षण तो देखूंगा ना उनको। कितना भी कोई निष्ठा हो, कभी कभी मन फिसल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम भी अपना शेयर कर लेते हैं। कितना लोग दूसरे के लिए कितना भी त्याग करे, लेकिन कहीं न कहीं अपना सुख को निकाल लेता है। कुछ न कुछ बहाना बना के अपना भी कुछ न कुछ भाग रखता है, एकदम पूरा निस्वार्थ बिना मूल असुर के कोई देना नहीं चाहता। लेकिन ये दासियां हैं,
जैसे राधा रानी कृष्ण कह रहे हम आपके असुर के दासी हैं, ऐसे यहाँ पर राधा रानी कृष्ण के लिए कह रहे हम आपके बिना मूल दासी हैं, ऐसे ये दासियां राधा रानी के बिना मूल दासी। वहाँ पर कृष्ण जैसे राधा जी को देने के लिए कुछ नहीं पाते, ऋणी हो जाते हैं, यहाँ पर भी राधा रानी इन दासियों को ऋणी हो जाते हैं जिनके जीवन में इतना बड़ा त्याग है। बोलते हैं हमारे पास सबसे बड़ी वस्तु कृष्ण है, जब इसको नहीं चाहते तो मैं इसको क्या दे सकती हूँ। राधा रानी इनके ऋणी होते, जैसे कृष्ण राधा रानी के ऋणी है और राधा रानी दासियों के ऋणी है। बोलते नहीं कि भाव है कि आप लोग जैसा मेरे लिए दे सकते हैं, मैं क्या तुमसे, मैं तुम्हारा हूँ। और जब राधा रानी कहते थे मैं तुम्हारा तो दासियां नाचती है, खुद सब मनाती है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन कीर्तन करेंगे, फिर अभिषेक करेंगे। तन में राधे मन में राधे, तन में राधे मन में राधे राधे राधे, जीवन हो गई हो राधे राधे, जीवन हो गई राधे राधे। निस दिन राधे राधे जपूं, निस दिन राधे निस दिन राधे राधे भजूं, निस दिन राधे 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 भजनवा, हो गई हो राधे राधे भजनवा, हो गई राधे 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 जीवन हो गई हो राधे राधे जीवन। राधा रानी आई रावण में, जमुना में कमल खिल गई हो। राधा रानी आई रावण में, जमुना में कमल खिल गई हो। वृषभानु जिले आइलन भवन, वृषभानु जिले आइलन भवन, कीर्ति दाम गनवा, हो गई हो कीर्ति दाम गनवा, हो गई